and welcome to Razzmatazz with Rashi. And today we have with us Geetika Mehra. She's an author, a blogger, a professional blogger, a freelance content writer, and she previously wrote a book on about the cafes and conversation around Delhi. And recently she has come up with a book on mental health. So you'll get to know about all of these and much more in this episode. So welcome, Geetika. Hi Rashi, thank you for inviting me. It's a pleasure talking here. Welcome back. How are you? Very good, better than before. Great. So tell your audience about all the wonderful things you've been doing. Wonderful things is all like these all are connected with blogging only. Yes. Baki to it's like life, family, and writing is the one thing that is giving solace, peace. True. So that when you need some break from family discussions and parenting and all, you can come back to your small cocoon and write what you like. Yes. So yes, writing keeps me busy. And recently I have joined my Bharatanatyam classes also. And that's like over a gap of 22 years. My so goodness. Pata nahi kaise it all came into place. That is so amazing. And I like it's not easy to dance at this time with such a big gap. But so you used to learn earlier, like in your school days or something? Okay. When I was in school, that time I had learned for 4-5 years. So when I came to 9th class, like maybe 14 years around, then I maybe the teacher shifted and we also got busy in our study. So it mostly 9th 10th mein log studies only studies and then everything stops. फिर जैसे कुछ सब कुछ खत्म हो गया टाइप्स करके फिर बड़े होते चले गए फिर life took its own toll तो चलते चलते फिर after so many years through some conversation and all I got to know okay there's one more place, there's dance happening ye wo. Then first I was going for my daughter, then she was there in badminton, she was more busy there. So she said कि अभी तो नहीं अभी ये तो पता नहीं कैसे clicked. I asked for myself. So फिर बस फिर this pandemic happened. So it was only 2-3 months I went to Triveni Kala Sangam in Delhi. So there only 2-3 months I was there and फिर ये हो गया March में. So are you continuing with Zoom classes and all? हाँ वो मजा तो but वो feel नहीं आती है. I know मतलब समझने में ही टाइम लग जाता है कि उनको भी हम इतना परेशान करते हैं गुरु को भी कि क्या वो बता रही है क्या हम कर रहे हैं. But still it's a form of exercise and because और तो कुछ नहीं हो रहा है. True. And I'm so happy you actually took up it again after so many years, after a gap of 22 years is like a lot. That is one thing apart from writing also, which is like मुझे मतलब my daily schedule consists of it's like यार ये दोनों चीजें कर ले थोड़ा थोड़ा ही चाहे आधा एक घंटा ही कर ले. अगर ये थोड़ा सा कर लिया तो it's like your days you are getting strength to face the other things. One daily challenges, so it's too much. Yes, especially during this situation, in this pandemic situation. Because last year it was all new. Every family is affected. बहुत ज़्यादा और ये इस time और ज़्यादा पूरा. So you need mentally to be strong. खुद तो हो ही and being a mother, wife, you need to be more like a pillar of strength. Taking care of the entire family. Seriously, तो तुम ही चिड़चिड़ करते रहोगे और तुम्हारा ही नहीं होगा तो बस फिर रोज लड़ाई झगड़े ही हैं फिर तो. So that is how you came up with a book on the mental health, or how is it? Tell us more on it. Yes, actually, this is one thing which I've been writing on my blog for a long time. मतलब because motivation तो शुरू से ही था, which came to me very naturally when I started writing. Maybe शायद इसी से ही शुरू करा लिखना. I want to, but then slowly I have polished my writing to write it in a way that it is helpful to readers. It does not look now as a diary entry. When I started, obviously उस वक्त ऐसे था जैसे कि मैं अपनी ही आत्मकथा बता रही हूँ. So that is okay. That is also good. But slowly I learned that it should be in such a form that कुछ पढ़ने आए तो किसी को take away भी मिले. उसे लगे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या and relatable भी हो तो now what's the solution? There should be one call to action thing that
इसके बाद अब वो आगे क्या करें। पढ़ने के बाद दे शुड हैव समथिंग इन माइंड कि अच्छा Yes. ये अब मैंने यहाँ से सीखा है तो अब मैं यहाँ पे इसको जाके अप्लाई करूँ या ये चीज करूँ, सो दैट दे कम बैक एंड दे हैव देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो कि yes I tried this, and touchwood I like very thankful to God also that this book was like not very, I was not very like बहुत पहले से सोचा हुआ नहीं था, कोई डिसीजन प्लानिंग वगैरह नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ओके चलो इट्स अ कार्निवल, दिस इज वंस इन अ ईयर थिंग होता है कि चलो आई राइट इट एज अ बुक करके, वरना तो आई एम हैप्पी राइटिंग ब्लॉग्स. So was it a part of A to Z or you made a separate book altogether? नहीं, it wasn't a part of A to Z. It was my regular blogs. तो उसमें ही थोड़ा सा edit and to convert it as a book, थोड़ा connections वगैरह बना के. So I like to converted it into an ebook only. So A to Z तो कुछ और था. That was not very fruitful to turn it into a book. But this was in my mind. This was different, yeah. You wanted to come up with this. Because this is one topic which I strongly believe in also. I keep practicing to control my subconscious mind, and I've seen results also. So when I see result, I explain it on my blog to my readers, and I try to be as simplest as possible, because this is not a topic that is very fun and frolic type. Exactly. You need time and you need peace to you need peace to check that yes, what you are reading is so what is the content more like? Is it about your personal experiences or like situations, like if this happens and what you should situations do? So हाँ, मतलब it is like कि general में every day you need to empower your subconscious mind. Subconscious mind is basically your, जैसे आप अपनी अंतरात्मा कहते हैं, the first reaction you get in your mind, and then you have your conscious mind जो डिसीजंस लेता है, जो आपको प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दिखाकर आपको कंफ्यूज करता है. yes, so no, no चलते रहते हैं. हाँ, and that is your subconscious mind, and because it always keeps you confused कि ये करे ना करे, because then वो आप उसको फिर टटोलने लग जाते हो अच्छाई में, बुराई में, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स and so much more. The chain keeps on going and keeps you engaged कि फिर आप कहाँ से शुरू होते हो और कहाँ पहुंच जाते हो, जबकि बात सिर्फ सिंपल होती है. Whatever comes to your subconscious mind, the first that is the answer. लेकिन फिर भी but वो समझने में टाइम लगता है. बट एज अ पेरेंट आप देखिए, कभी हम मैनिपुलेट करते हैं, हमें पता है ये चीज बच्चे को नहीं देनी, हम पहले मना करते हैं क्योंकि उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट वो बार बार नाक करता है हमारे को, तो हम भी परेशान होके उसको कह देते हैं ना नहीं. और ऐसे ही कितनी चीज अपने लिए भी होती है, कितनी बार कोई चीज झूठ बोलते हैं हम, हमें पता है नहीं यार अच्छा नहीं होगा, बट देन क्योंकि सिचुएशन ऐसा है या अभी हमारे को नहीं करना है, सो यू मैनिपुलेट एंड यू कीप ऑन. तभी कुछ सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी हम कुछ और बोल देते हैं. मतलब यू नो दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, बट हमें लगता है आज कर लेते हैं, इस बार कर लेते हैं, या ये सिचुएशन डिमांड करता है. सो दैट इज द बुक इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस ऑल्सो, बिकॉज आप अपने सेंसेस को ही, जैसे आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या स्मेल करते हैं, हमारे को स्मेल से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, तो हम कुछ स्मेल करते हैं. सो देर आर ऑल 5 senses I've talked about, and how if something bad comes to you first, how you can control it or just divert your mind, so that because negativity as a human nature पहले ही आती है. Yes. Keep on, and many times we get carried away so much that हमें पता ही नहीं चलता, जबकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, but we keep on talking to our mind, ourselves. हाँ, because we are free of something. If you are not doing anything, आप कितनी बार सोचो, if you are sleeping on a bad note, कुछ बुरा सोच के, या मतलब कुछ किसी bad dreams भी आती है, आर्ग्यूमेंट ही होकर अगर आप सोए हैं, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट द नेक्स्ट डे इफ यू गेट अप, उस वक्त भी एकदम से व्हेन यू कम टू कॉन्शियस माइंड, तो आपको लगता है ना, ओहो हम तो अच्छा ऐसे लड़के सोए थे, तो आज भी हमने शायद ऐसे ही रहना है करके, तो वो दिन भी ऐसे ही निकलता है. दैट कैरीज ऑन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एकदम से नहीं होता है और कुछ भी आसान नहीं होता है. यू हैव टू फर्स्ट बिलीव कि हाँ ऐसा होगा, because I have believed and I have seen results. So when I have experienced whatever I have experienced, I have shared in the book also. कहाँ छोटा होकर मुझे लगा, so that it is not. No, that helps a lot. अगर personal experience किसी ने किया है
और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, that people can relate to that. यस, कि मुझे अगर हुआ है उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो तो दूसरों को भी हेल्प होगा। इसीलिए I like shared also many things, and there are many small things which like there are tips that if you don't want to do a thing but you have to do. अगर किसी को खाना बनाना नहीं पसंद पर उसे बनाना ही है, उस वक्त नहीं कुक नहीं आया या हेल्प नहीं है या कुछ है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग भी होता है, मैं भी बहुत करती हूँ। अभी पेंडेमिक में तो ज्यादा हो रहा है बाहर कोई जा नहीं पा रहा है, बाहर का खाना है नहीं, एंड सबको खाना ही चाहिए मतलब अब इंसान जी रहा है तो खाएगा, बट इट्स लाइक कि आज ये अब नया भी तुम क्या बनाओ, क्या डेली क्या बने स्पेशली वीकेंड्स, लोग वीकेंड्स में बाहर जा रहे हैं, एक हैबिट हो जाता है कि कहीं घूमने चलते हैं, बाहर नहीं जाए तो आजकल भी लाइक थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ कि अच्छा मंगवा लो, ऑर्डर करवा लो, वी कैन स्प्रे, वी कैन डू दिस दैट। अब इट्स ऑल अपने मन को समझाना कि इस बार तभी बर्थडेज एनिवर्सरी सब कुछ घर पे ही, घर का खाना 2 साल से मुझे लग रहा है सब यही कर रहे हैं आगे भी अभी कंटिन्यू होगा। So in that stressful times, it is not like possible कि आप रोज खुश हैं, रोज हंस रहे हैं, but the maximum you can at least आप पढ़ रहे हैं तो आपके कहीं तो सबकॉन्शियस में उसको स्टोर तो हो ही रहा है ना। जब हमारे कुछ आइडियाज मिलेगा कि हाँ कैसे क्या करना है, कभी तो आता है, मतलब you read so that is getting stored on your mind। हम छोटे में भी पढ़ते थे तो मैम कहती थी ना read aloud, because what you say your ears are listening और register होता जा रहा है, तभी वो कहते थे जोर जोर से बोल के लिखो, so you will learn it करके। so करते करते आप चाहे आज अप्लाई ना करें, बट अगर कहीं पढ़ा होगा तो आपके तो सबकॉन्शियस में ऐड होता जा रहा है ना। इट्स लाइक जैसे हमारे ट्रेडिशंस होते हैं करके कि उसको ये संस्कार मिलते जा रहे हैं, तो कैसे मिल रहे हैं, बिकॉज हमारा परिवार बचपन से यही बातें हमें बार बार सुनाता है, बार बार हमारे आगे करता है। So that is what the book is all about। आप भी जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जब लाइक सबका नेगेटिव भी है, बट इफ यू जस्ट स्टॉप एंड करेक्ट द सेंटेंसेस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। किसी के सर में दर्द होता है तो बार बार यही बोलता रहता है ना, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। इंस्टेड यू कैन से मेरा सर ठीक हो रहा है, मुझे अपने सर को ठीक करना है, उस दर्द को निकालना है, पर्सपेक्टिव चेंज करने का। तो व्हाट यू से योर माइंड इज लिसनिंग, और पावर तो सारी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही है। लोग कहते हैं ना अपने आत्मा, अपने अंदर ही तुम्हारा ज्ञान है सारा, या फिर सारी पावर आपके अंदर ही है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो करके। So that is just to connect to your inner self. It's not easy obviously, and like because the book also which I am reading and I listen to audio these lessons also, that is also not very like ऐसा नहीं कि आप आज बैठे हैं तो पूरी खत्म करके ही उठेंगे, like a mystery or some romantic genre जैसे कि आपका इंटरेस्ट है, you need to listen। बिल्कुल आपको सुनना है, समझना है, छोड़ देना है, छोड़ दीजिए कि इफ कैन यू फील इट, कि आपको लग रहा है। कितनी चीजें हम दोबारा जाके उसको पढ़ते हैं, एंड दिस बुक इज ऑल्सो लाइक I have tried to be as simple as possible. The language is also very simple, and this is also like a keep away book type. You can keep it in your drawer and you can come back and again read it. कि उसमें लिखा था तो वो eyes को कैसे हम जो देखते हैं उसे कैसे कंट्रोल करें, या जो हम बोलते हैं उसे कैसे बोलने के लिए, तो it's always like don't react instantly। हम इतना सुनते हैं कि हमें गुस्सा आता ही है और उसी में सब नाश होता है, but that is also one place because there are I've added bonus chapters also here, so tips to anger management pe, so that is also how I try to like stop myself। हालांकि कंट्रोल कैसे करते हैं ही है, हाँ, बट स्टिल जब मैं कर पाती हूँ आई फील कि हाँ ये इतना मुश्किल नहीं था, बट तुम्हें अपने ये करना वो भी प्रैक्टिस से आता है ना, एक दो बार हमने किया ऐसा, कंट्रोल किया, ट्राई किया, और एक बार होता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ देखो ऐसा होगा। सो whenever I feel कि हाँ देखो बच्चे को, अगर वो बच्चा तंग कर रहा है, हमने उसको एकदम से डांट दिया और वो कर दिया, तो फिर और किसी दिन मुझे लगा अच्छा मैं 1 मिनट छोड़ के उसको सुन लेती हूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश, एंड आई फील लाइक अच्छा 1 मिनट की बात थी। सो मेनी इंस्टेंसेस आर देयर इन लाइफ, जो डेली लाइफ ही हमारा इतना ज्यादा है, हमारे को सिखाता है। बहुत एडवेंचरस हो गया आजकल लाइफ मतलब
डेली लाइफ ही इतना, उसमें सब कुछ इतना ऑन एंड ऑफ रहता है, अप एंड डाउन है, हाउ टू ट्रीट इट और कैसे. सो लर्निंग एक्सपीरियंस तो वही हमें दे रहा है, बस यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट. आप क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं. And especially these books, जब people they are under such situation, तब उनको ये रीड करने में ज्यादा ज्यादा रिलेट करेंगे कि हाँ अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ और इस बुक में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है. So yes, people can again come back to that book. लोग मिलेगा लोगों को, क्योंकि आजकल यही हो रहा है और यही लिखा भी है. So and a few people who have reviewed my book also, उनको बस एक ही फीडबैक था कि they want more personal experience to read on my book. So I am working on it कि और थोड़ा जिससे कि I can update it further also. कि they want to see कि और थोड़ा personal experience और add हो, जिससे कि they can resonate more with the book and they can come back again. Nice. So it's a simple एक कोशिश है जिससे कि people will be like थोड़ा सा lighter, थोड़ा easy हो जाए life. अच्छी कोशिश है. मतलब बिल्कुल थोड़ा, वैसे तो सबके ही जिंदगी में कुछ ना कुछ एडवेंचर्स चलते ही रहते हैं, and every life is different. Yes. So this is just a small initiative ki, because this is one thing that comes naturally to me, and this I believe in and I've practiced it. So I am keep practicing also. So whatever I am practicing, I am like jotting down into. Yes, and because it has already helped you, so it's always a good idea to share with others. हाँ, जैसे एक होता है ना कि रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा ऊपर उठ के भी और कुछ है. So बाकी तो घूम फिर के यहीं आना है. We can't ignore this life. ये तो है ही जब तक है. So would you like to read some lines for us from your book? Okay, I can like read a paragraph from the first chapter of the book only. Okay. This is the chapter's name is How to Train Your Brain and Be Powerful in Life. So simple tricks to train your brain. Many times you indulge in negative thoughts unknowingly. It is important to divert your mind to other purposeful thinking in the following ways. Like start singing your favorite song. Instantly your brain will go to the places where that song is shot with the people involved in the video. Or even more magical is when you connect with that time of your life when you used to hear this song regularly. I get this feeling so many times as I listen to songs of 90s and early 2000s. Another way could be chant your favorite hymns. Automatically, you will think about the words written in the book, or maybe much better, watch something good on TV or mobile. So these things will be more helpful to divert your mind and make you like a little happier than the negative thoughts they are trying to come up to you. Sitting idle can also be a brain exercise. Even sitting idle creates great ideas. Your brain exercises and thinks beyond limits. Treat it like your creation period and weave purposeful stories around. When you mindfully pick up your thoughts, something constructive comes out and you feel proud of yourself. Yeah. Yeah, actually कहीं पे लिखा भी था, somebody said lazy people are the most creative people. तो idle बैठे हो. Because these times बच्चे इतना होता है कि उन्होंने अपना अगर काम वाम कर लिया है and अपना खेल भी लिया है gadget and all, and they come back, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, and I keep telling them बोर हो रहे हो, थोड़ी देर बैठो, खिड़की से बाहर देखो, थोड़ा आंखों को भी आराम मिलेगा, थोड़ा दिमाग भी शांत होगा, और बाहर देख के तो they feel that is a waste of time. हमें कुछ दो, हमें कुछ दो. So it has been actually a very difficult thing, to keep kids engaged at home for entire 24 hours. Because school जाते हैं उसका अलग activities होती रहती है. थकते तो used to रहते हैं उसको. वो एक तो वो exhaust होके फिर घर आके rest करते हैं. हाँ, अपने peers के साथ खेलते खालते सीखते पढ़ते. फर्क पड़ता है. They used to like 4-5 घंटे वहां जाते थे, फिर थोड़ा आके आराम कर लिया, ये वो. Then evening में बैठ के, and then obviously ये online पढ़ाई में भी तो अब there's no option. But अब जब होगा जो होगा, फिलहाल तो this is all gadget only for them. तो उनके लिए भी बहुत new है ये experience. हाँ, and they are also stressed at their level. उनको लगता है हमारे खेलने का टाइम इसमें चला गया. हम अपना स्कूल से आते थे, थोड़ा कंप्यूटर में गेम खेलते थे, बट अब तो ये इसमें काउंट हो गया है. और हाँ, और हमारा कंप्यूटर का गेम का टाइम कम करवाते हैं क्योंकि पढ़ना भी है उसी में. उसका अलग फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. फिर वो पेरेंट्स पे ट्रांसफर होता है.
बिल्कुल. So that is a chain ongoing कि क्या है क्या नहीं है. I'm But sure your book will help फिलहाल a तो lot of people. Good that it you have come should. up with this topic. Yeah. So how did you start writing? Like, कैसे, like, how did you become a blogger? Because you are a professional blogger and you'll be writing, sharing your thoughts on your blog. How did all this start? Professionally तो it was when I started when I found this community मुझे लगता है क्योंकि Okay. उसके पहले लिखना तो जैसे हम अगर शुरू से पसंद था थोड़ा थोड़ा लिखा. Then in 2014 when my kids were little bigger जब मैं थोड़ा सोच सकती थी I started searching on internet क्या है कहाँ पे I can give out my articles या जैसे publishing के लिए होता है करके. Yeah. Then फिर ध्यान आया कि I found blogger.com कि इस पे blog बनता है free blog and all. But that time also मतलब I had written like 20-25 blogs, whatever I thought of my this thing. But obviously just published and you didn't know how to promote or हाँ. who is going Starting to में read सबका ऐसे ही it. था. कहाँ share Maximum करना है, क्या करना है, अभी लिख तो दिया, अब करना क्या है उसका? and then No idea. main ये होता है that your people, your friends also, like जैसे अगर हमने अब तक Facebook ही अगर होता है, Twitter पे इतना एक आधा बार कर लिया, so there also your people, your friends are don't accept you as a writer. They feel अच्छा क्या है क्या नहीं है. Okay. Yes. Once my college friend or some friend read my initial blog, एक बार ऐसे मैंने share करा, so that was also motivation something only. Yeah. So what I felt at that time करके तो he like read and he messaged me with recommendations of other motivational speakers. Okay. That if you are depressed you can read them करके. So मैंने कहा हाँ thanks, that is a very good this thing. But मैं मतलब I thought मैं उसे क्या समझाऊंगी कि मतलब मैं क्या, that is Exactly. that is the initial feedback of people who But वो तो treat अच्छा, you at least as somebody read your blog. Starting में तो even if you share कोई पढ़ता भी नहीं है, friends भी नहीं देखते क्या लिख रही है. वही कि और फिर दे फील कि पता नहीं ये क्या हो गया इससे क्या लिख रही है, बिकॉज दे डोंट हैव एन आइडिया. या तो तुम स्कूल वगैरह से ही वही सब्जेक्ट्स लेके उसी तरफ को जर्नलिज्म में या फिर उस तरफ, वो सब कुछ नहीं था. तो दैट वाज भी कुछ होता है, वो आइडिया ही नहीं आता लोगों को. वो कहेंगे फ्रीलांस में क्या कमाई होती होगी, क्या करते होगे तुम, मतलब ऐसे ही कर रहे हो ना कुछ, तो चलो टाइम पास है करके. सो यू नीड time to make a space for yourself, mark respect for yourself with your work ki haan, and that comes with consistency only. मतलब करते करते भी फिर I did a small course in this some school. So जैसे होता ना the British Council in Delhi, so that was a 2 months course only. That was not like creative writing के वो नहीं था, non fiction, but just to brush up your language again. मतलब उसको करके I thought कि अच्छा हाँ यार I used to do all this exercises and all करके, लेकिन you get lost in life. जब तुम अपना सब पढ़ के सब छोड़ चुके होते हो, you are so busy creating life, people, family, so you feel अच्छा हाँ ये सब is that, and that was just a brushing up of my mind. And उसके बाद जैसे फिर you come back full fledged, so I was still continuing in blogger.com only. Then once then जैसे ट्विटर पे थोड़ा सा होने लगा शो, then I found one email from blog chatter, किसी कुछ activity होना था, and then हुआ जैसे अच्छा चलो they are talking of blogging, तो एक that is one community find you, at least like minded people are there. समझ रहे at least हाँ कि blogging you है feel अच्छा हाँ ये होता है blogging, and they are talking about that thing, तो चलो let's join and see. फिर I've made friends and all, तो they all like suggested अगर if you are serious with blogging तो उसको अभी ही you change it to a blog proper paid one version, that is your personal version करके, and especially because अगर आपके कम हैं अभी blogs भी, so it's easy to transfer your name also, and yeah, नहीं तो फिर खो जाता है and you lose your audience also, फिर उतना ही टाइम लगता है बनाने में. So it was pretty good, मतलब 25 ही थे I remember, and then I got on WordPress self hosted. फिर तो हाँ जी, फिर उसके बाद because that was so clear, अब इतने साल लग गए समझने में ही, and then करके कि अब तो it was like अब अगर कोई समझा रहा है कुछ दे रहा है, so this is one thing I want to do. फिर तो उसके बाद कुछ ना कुछ they kept engaging us, कभी कुछ एक्टिविटी कभी कुछ, so you feel, and मैंने तो देखा है पेड से ज्यादा सब कुछ हमने यही सीखा है कि मतलब people ask कि do you community go for का बहुत बड़ा हेल्प होता है.
बिकॉज द अदर ब्लॉगर्स का ही एक्सपीरियंस इतना सब कुछ तुम्हें सिखाता है Yes. कि ऐसे करना है वैसे करना है. लाइक Mm. व्हेन यू स्टार्टेड योर यूट्यूब वीडियोस इंटरव्यूज एंड Yeah. ऑल, देन आई वाज लाइक कि हाँ देखो, एंड योर पियानो क्लासेस व्हेन यू Yeah. लाइक छोटा छोटा बना के करना, एंड देन यू वर हिटिंग 10,000 प्लस व्यूज वगैरह. सो दीज आर एक्सपीरियंसेस एंड एग्जांपल्स दैट यस, True. इफ यू हैव द पैशन और आप बिलीव करते हो तो होता Yeah. है. ऐसा नहीं है कि वो बने बनाए ही जिसके लाखों Exactly. सब्सक्राइबर्स Exactly. व्यूज होते हैं, वो ऐसे बने बने ही नहीं पैदा होते हैं. वी लाइक कहीं से तो स्टार्ट होता है, एटलीस्ट स्टार्ट करो and then you can हाँ. continue with that. मेन इज कि आपको समझ में आए ना पहले. Yes. आप तो एक्सेप्ट करो अपने आप को कि हाँ आई Yeah. वांट टू बी दिस थिंग, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स. एंड मैंने देखा है तब True. योर फैमिली आल्सो सपोर्ट्स यू. Family support matters a lot. Yes. इट मैटर्स. मतलब आप हर दिन तो लड़के नहीं अपने कमरे में बैठ के Yeah. सब कुछ कर सकते हैं ना. यू नीड मेंटल पीस आल्सो. Yes. कि हाँ, एंड देन दे You know, gradually they also understand, okay, this is her Yeah, passion, she they needs accept- time for that. Let her be and alone for some time. हाँ, मतलब it हो is जाता right है. now that yes, she is working for it. तो इसका मतलब Yes. कि हाँ, वो she also believes, and then they see that the thing is coming back to her also. So they that is like थोड़ा respect and थोड़ा encouragement Yes. भी आता है उनकी तरफ फिर से. recognition भी होता है, And फिर लोग जानते हैं कि okay, she is known for this हाँ, thing, वो ऐसे इस पे लिख रही है, इन सब टॉपिक्स पे लिखती है, तो उनसे एडवाइस ले सकते हैं. and that Yeah. is consistency से ही आपको आएगा. आप True. अगर एक बार लिख के, जैसे YouTube वीडियो है, मैं एक बार बना के हाँ. भूल जाती हूँ, मैं बनाती हाँ. नहीं, मतलब बड़ा मुश्किल से. अगर होता है, वो मैंने बहुत ब्लॉग बहुत के लोगों के लिए साथ हुआ एक्चुअली. लोग 2-3 साल कंटिन्यू करते हैं, बहुत देन दे डोंट गेट एनी 2-3 रिवॉर्ड फ्रॉम साल दैट तो एंड मतलब मतलब मैं तो बंद हो एक जाता आधा भी, वो भी इट्स बिकॉज है. अगर मैंने किसी का बुक पढ़ी एंड आई इंटरव्यू दैट ऑथर, तो वो अब ऑथर को इंटरव्यू करा है तो ऑब्वियसली हाँ. फेसबुक पे करा है, एंड देन ओके चलो ये थोड़ा फ्रूटफुल इंटरव्यू है, सो वी कैन पुट इट अप ऑन चैनल. हाँ. तो हाँ. बस चैनल में डाल दिया. अब वो प्रमोशन के टाइम तो लगता है ओ वो, मतलब एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ इक्वल कंटेंट कैलेंडर फॉर वीडियोस आल्सो. Yes. मतलब जितना मैं ब्लॉग पे कर रही हूँ दैट इज इक्वल से ज्यादा. Equal amount of उसमें तो effort तुम्हें goes, प्रेजेंटेबल both. भी लगना है, Yes. फिर उसमें उसको तुम्हें प्रमोट अच्छे करो, से. प्रमोशंस का तो अलग टाइम जाता है. सो मतलब एंड दिस इज अ प्योर, जैसे होता है ना, वो पूरा भारी काम है. ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसे फुल चलते टाइम फिरते जॉब. मैं तो वीडियोस बोलती हूँ बना बहुत को, ये लिया. फुल टाइम जॉब ही है, बिल्कुल. उसको एंड फ्रीलांस प्लेजर लाइक मत ही लो. उसमें मुझे लगता है कि सब कुछ है वही जो तुम्हारे ब्लॉग में तो फिर भी Exactly. तुम ऐसे ही अपने पजामा में बैठ के भी लिख लो, बिकॉज हाँ, यू आर बिहाइंड द वीडियोस के लिए you कैमरा. have to, you know, यू you हैव also टू need बी. that energy to come to that, face the हाँ, camera, एंड प्रेजेंटेबल और होना मैंने देखा चाहिए, है आपके अंदर जैसा होता है ना, आपके चेहरे पे वो दिखता है. रिफ्लेक्ट अगर करता आप है. किसी से बिल्कुल. लड़ झगड़ के किसी के साथ अब आपने लाइव करना है करके, तो यू आर नॉट हाँ, एट पीस ऑल्सो. ट्रू. आपके वो बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा, जो Yes. दिमाग You तो won't वही be चल able रहा to है, give फिर your आप best. स्क्रिप्ट भी है. हाँ, Exactly. देन रीटेक्स ये वो. हाँ. सो वो फिर तो वो और दिखता तो है कि ये बहुत ज्यादा. स्क्रिप्टेड है, ये तो बस रीडिंग चल रहा है यहाँ पे, या नेचुरल इट्स नहीं नॉट आता. कमिंग इजीली, या कि या तो फिर आप रीटेक कर रहे हैं, या फिर मतलब आपका टाइम कंज्यूमिंग ही है वो. हाँ, एंड द बेस्ट आता है कि और कितनी बार ऐसे बैठे बैठे ही आ जाता है हमारे को और पता नहीं चलता. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन yes, द कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. सो correct. आई तो ऑलवेज से कि यूट्यूबिंग इज नॉट इजी, एंड इट इज Not easy. मोर True. देन पूरा. मतलब एसईओ वगैरह जो हम ब्लॉग्स में सीखते हैं वो अब हम उसमें भी प्रिपेयर करते हैं, सो दैट इट कम्स अप एंड रिसर्च रिजल्ट्स में Yes. दिखे. एंड पीपल आर टर्निंग टू यूट्यूब. हम खुद भी तो कुछ भी चीज के लिए यूट्यूब Yes. वीडियो देखते No, हैं. because videos, audio अभी ये सब काफी अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को. अट्रैक्ट है. हाँ, दे रीडिंग के आर लिए अट्रैक्टेड. लोग थोड़ा लेट बैक हो भी जाते हैं कि हाँ अभी कब दे बाद में आर पढ़ लेंगे, देयर आर. बट व्हेन दे कम हाँ, अक्रॉस अ वीडियो दे इमीडिएटली एटलीस्ट वॉच कि हाँ इट्स क्या है, क्विक. क्या दिखा रहे इसमें. क्योंकि हाँ बिल्कुल, इट्स क्विक ऑल्सो. वी टीम जैसे मैं भी होता है कि किसी कुछ जरूरी का देखना है, देख लो, बट एक बार क्लिक करके देख लो, बहुत बड़ी तो नहीं है ना, इतना तो मैं देख लूंगी ना. एवरीथिंग मैटर्स. ऐसे ही हम जैसे लिखने में भी होता है, पढ़ के जाते तो हाँ, द ऑडियंस इज लाइक सेपरेटेड. उसकी भी है, और लोगों इसकी के भी पास है. टाइम है नहीं आजकल, तो लंबे ब्लॉग पोस्ट हो या लंबी आपका वीडियोस मन हो भी होना नहीं चाहिए. देखेंगे. आप वो मन भी होना चाहिए ना. हाँ. कितने है लेजर में बैठे होते हैं कि Yeah. हाँ आओ चलो आज कुछ देखते हैं सीरीज. मतलब मुझे तो लगा अभी आई जस्ट फिनिश्ड वन राइटिंग चैलेंज, तो उस 10 दिन में जो मेरे सर पे प्रेशर आके मैंने उसको कैसे हाँ. खत्म करा है. बट एंड माय फैमिली इज लाइक, वो वीकेंड आता है, अरे तुमने ये सीरीज आओ बैठ के देखते हैं, अरे आओ ये मूवी देखते हैं. एंड आई वाज लाइक कितना फ्री टाइम है. कितना टाइम है. Exactly. अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मैंने अपने सर पे डाला है, बिकॉज आई फील
challenges ना थोड़े 1-2 महीने में आते रहे तो they हाँ. keep you pushing. Yes. They like keep you on your toes कि हाँ एक वो deadline create है तो तुमने और इसको जरूरी finish है करना ये है. सब writing challenges and थोड़ा all वरना बहुत जरूरी है. because Once in a while you उसके should. बीच में फिर होता है तो फिर वो डिप हो जाता है, फिर भी हम एक हफ्ते में 10 दिन में एक ब्लॉग आ रहा है कि करके, so that is also important. It's all like एक rotation में everything is important. But like I was like missing कि मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, ये लोग ऐसा होता है मैं सारी अपना वेब सीरीज देख exam ले दे रहे रही हूँ and they were coming like बच्चे भी फैमिली भी कि अरे चलो ये देखते हैं, अरे चलो वो देखते हैं. I was like अभी देखेंगे, पहले मैं जरा इसे फिनिश कर दूं. पता नहीं क्या कर रही है, हाँ पता नहीं क्या इतना पढ़ाई कर रही है, क्या लिख रही है, अच्छा कुछ होगा करके. So they also go keep on, चलो हम देख लेते हैं करके. So आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? Like what is it that keeps you going? इंस्पिरेशन तो है, बहुत है, मतलब अपने आप में ही अपने अंदर से आता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो फिर क्या करूंगी. Because recently also I've written a blog on one of the commandments only for half marathon. So उसमें था कि what keeps you on toes to keep on learning, thou shalt keep learning था commandment. तो उसके ऊपर ही लिखा था. So in that also I have shared that एक बार I was talking to my mom that when I didn't like started anything like this, I didn't start anything. So I was just my kids were very small, शायद तभी हुए वगैरह. When you are like postpartum depression भी होता है and you feel अब अच्छा बड़े हो गए कि that time also I because तभी लिखते थे तो थोड़ा just on in your diaries and all वगैरह करके. So once I shared with her कि I've been mom, I've been wife, now what next, मतलब I don't want to be stagnant here. So उस टाइम पे था कि ये तो मैं हूँ ना, ये तो मैं रहूंगी ही जब तक हम हैं. But मुझे वो अपना I don't feel complete. A kind of identity, you know. आइडेंटिटी भी बाद में आती है, मतलब मुझे लगता है ठीक है आई वॉज हैप्पी बीइंग अ मॉम बीइंग दिस थिंग, बट उससे ज्यादा भी अच्छा ठीक है अब ये सब भी सीख लिया ना. तुमने माँ एज अ पेरेंटिंग भी सीख लिया, एज अ कुक भी सीख लिया, एज योर परिवार को बना के रखना भी सीख लिया. सो अब कुछ मिसिंग था, कुछ मिसिंग था जैसे. फिर धीरे धीरे you get leads all into coming one place और वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं. एंड आई फर्मली बिलीव कि तुम्हारा टाइम भी होना चाहिए. मतलब बिकॉज आई हैव फेल्ट कि यही थिंकिंग बहुत सालों से मेरे अंदर थी कि लिखना है उसको प्रोफेशन बनाना है. बट जब टाइम आता है तभी सब कुछ एकदम तभी होता है. एग्जैक्टली. And I have seen, in fact, this is one of the idea for my next blog also, that कहते हैं ना अच्छा वक्त तो नहीं आया तो हाउ आर यू मेकिंग योर डेस्टिनी. सो मुझे लगता है जब वक्त नहीं है पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे थॉट प्रोसेस तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना. सो कीप थिंकिंग. मतलब I have realized I have thought for so many years that I'm writing and I am getting recognition as a blogger, as a writer. और मुझे लगता है तब मेरा वक्त नहीं था ना, लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस को इतना ट्रेन करा कि आई कुड ड्रीम ऑफ इट. जब तुम रात को सो तो तुम उसको सोच के सो, तुम सुबह उठो तो बी थैंकफुल कि हाँ तुमने सोचा एंड यू हैव अ डायरेक्शन. बहुत साल करते करते देन एकदम सब क्लिक होता है. एंड आई एम थैंकफुल फॉर टुडे. Yeah, no, that shows that you are so passionate about the work that you are doing. हाँ, it comes out in your through your blogs and your books. आपको देता है एक वो स्ट्रेंथ भी वही देता है और आगे प्रोड्यूस करने की. That अभी हालांकि it's nothing like I'm very getting paid for what am I writing on my blog. So that is all ठीक है. It's my but फिर भी अभी भी it is one of the some other कोई आ जाता है unknown reader जो कुछ कमेंट छोड़ जाता है, कमेंट्स काफी इफेक्ट करते हैं. So लगता है मतलब that is unknown. कोई आके किसी उसमें डायलॉग ब्लॉग्स में लिख देता है कि yes I was searching for something and as soon as I put in happiness your blog came up. So that is what I want. अगर एक भी लाखों करोड़ों में अगर मुझे कहता है कि मैं हैप्पीनेस ढूंढ रहा था और मुझे तुम्हारा ब्लॉग मिला, और क्या चाहिए, that's a reward here. कि okay I am in the right direction. आगे और करना है but at least शुरू तो कर ही लिया है. अगर एक खुश है तो शायद दूसरा भी खुश होगा कुछ पढ़कर. So and that is also I am also and it's not that everybody will comment. अगर कोई एक कमेंट करो तो मतलब और भी 5-6 लोग तो पढ़ रहे होंगे, but maybe they're not taking the efforts to comment. ठीक है, मतलब एक नहीं दिया that is
हाँ, एटलीस्ट बस ये है, क्योंकि देखो अपने कम्युनिटी, अपने नोन फ्रेंड्स तो फॉर एन ऑब्लिगेशन आल्सो दे कैन कम एंड we keep supporting एंड each आई other. आल्सो Yeah. डू। हाँ, जैसे आई आल्सो डू, अच्छा यार इसने नया लिखा है, पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा Yeah. उसे भी हमें भी। सो बट वो सम सबको एक अननोन encouragement पर्सन, चाहिए होता है, so it helps if the यही community तो is. कम्युनिटी हमें चलाता है। That's what. मतलब बिकॉज एटलीस्ट वी नो ना अब नेक्स्ट क्या करना है, कुछ एक एजेंडा तो Exactly. है राइटिंग लाइफ में। वरना Yeah. यू कीप फीलिंग यार ये लिख तो लिया है, पता नहीं कौन पढ़ रहा है, हाँ. कोई पढ़ रहा नहीं, महीनों में एक आएगा अननोन जो कहेगा यस आई Yes. रेड यू। सो उस महीने तक तो आपको चाहिए ना True. मोटिवेशन, True. सो यू नीड इट, सो पीपल आर अराउंड Yeah. हेल्पिंग। So apart from writing, और क्या है जो that is something that you are very passionate about, something that we don't know about you? वो तो मैंने अभी शेयर करा, माय Dancing. Yeah. डांसिंग। सो दैट वाज वेरी मच, सो नाउ दीज टू थिंग्स आर, अपने दो बच्चे Keeping हैं you और busy. ये दो पैशन है बस। कि एक अपने बच्चों की तरफ मुड़ जाओ, एक अपने बच्चों से भी जब चैन चाहिए हो तो यू कम Yeah. हियर कि यार प्लीज अपने पूरे दिन में आई राइट आई रीड। लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत कुछ, जैसे इफ यू हैव सीन दैट रोबोट पिक्चर Yeah. रजनीकांत की जो आई थी, उसमें एक सीन था वो ऐसे ऐसे किताबें करता है, उसने पढ़ ली सारी। आई रेजोनेट विद दैट सीन सो Yeah. मच। मुझे लगता है हमारे यार TBR का इतना लिस्ट बढ़ते ही सब जाता है. कुछ, और इतना सब कुछ, मतलब नॉट जस्ट फिक्शन, नॉलेज के लिए भी इतना लगता है कुछ। मतलब आई वांट कि मैं 1 घंटा तो सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं, मतलब रेलेवेंट भी आती हैं जो, वो भी यू फील जैसे उसने वो शेयर करा, उसने ये शेयर करा, उनकी कोई आर्टिकल अप आया, सब Yeah. कुछ पढ़ना है। तो आई ऑल्सो विश मेनी टाइम्स वो मैं भी ऐसे ऐसे करके करूं, पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, एंड सब मेरे अंदर जमा होता आ जा रहा जाए. है। But you can't नहीं be होता. everything and at any time, and Exactly. it is an acceptable fact. I am also accepting मैं सब कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सब कुछ सकते. मुझे That's करना true. भी नहीं है। वो एक सोच ही तो तुम्हारे को प्रेशर डालता है ना, Yeah. मल्टीटास्कर ये वो। नाउ टाइम्स हाँ, हैव वो सब गॉन तो दैट पीपल, टर्म्स दे देते हैं लोग कि हाँ चलो बहुत कुछ हाँ कर रही, सुपर we वुमेन. started through this, हाँ we started through this, बट रियलिटी तो फिर धीरे धीरे ही पता चलती है ना, वो मल्टीटास्कर Yeah. में भी कितना मल्टी प्रेशर है हमारे होता ऊपर। है. सो And इट्स every day ओके is इफ यू different. आर सब हर डेलीगेटिंग। दिन का अलग सिचुएशन होता है. लिखना हाँ चाहो भी तो नहीं मतलब होता है, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, फिर नहीं लिख बहुत पाते. बार, और नहीं होता. दिमाग में ही रह जाता है, अच्छा आज लिखते हैं, कल लिखते हैं। हाँ, हालांकि उसकी भी चिड़चिड़ाहट कभी होती है अगर हो तुम जाती है फिर. 4-5 दिन नहीं कर पा रहे, एग्जैक्टली. बट आई नो द टाइम आई विल सिट एंड राइट, उस दिन अच्छी नींद आएगी कि आज मैं कर पाई हूँ करके। सो यू How फील nice. सैटिस्फाइड दैट डे। Okay, so we'll end this episode with one fun question. कि अगर just imagine if you wake up tomorrow as some other blogger or writer or a friend, who would that be and what would you do? मुझे किसी का नहीं बनना कुछ। आई एम हैप्पी बीइंग गीतिका एंड राइटिंग ऑन thoughtsbygeetika.com। सो मतलब अब वो शायद अब Maybe you आई can हैव wake up with ग्रोन that फ्रॉम robot दैट। वाला power. हाँ बस एक दिन. वो ही शायद हो जाए, बस वो ही मिल जाए कि जब तक है तब तक हम कम से कम जो लिख रहे हैं Yeah. और जो जो पढ़ रहे हैं फटाफट फटाफट खत्म हो जाए, बस. दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन You have been doing बाकी really तो wonderful things. So please continue doing that. Keep coming up with wonderful थैंक यू वेरी books. मच। And it was it's so nice to have you back on this show. Thank you so much And for so taking our time. I am equally happy that you Yeah. interviewed and we had a fun talk. Thank you very much. Yeah. So we'll be sharing all the links at the description of this video. So please check, visit our blog, leave a nice comment on that if you like what she's doing, and keep watching Razzmatazz with Rashi. Thank you.